Hello, everyone. Welcome to the corporate series Beacon House International College podcast. I'm Sana Pathan. I'm the host for today. And with me, I've got a commendable guest, Mr. Umar Guman, who is a senior director, Samsung Mobile for Pakistan. Umar has been there in the corporate sector, serving the FMCGs and other renowned organizations for the past 3 decades plus. And we are highly proud and humbled by his presence today in our studio. Welcome, Umar, to our podcast series. Thank you so much for having me, Sanam. It is a distinct privilege to be here, and I've thoroughly enjoyed the campus tour. What you're doing here is phenomenal. Great. So I'd like to, before I go on to the questions, I want to also like to point out that Umar is one of the very few leaders who have been recognized by itself at Samsung as one of the top 100 people leading and also directing youth and young professionals in the organization. And we'd like to take an opportunity today to ask and seek learning from Mr. Umar on how is it possible for us as an institution to tie the knots in terms of developing people's skills, abilities, mindset, and eventually their competencies to outperform and grow the businesses for which we are preparing our students. This is, again, I said, this is a distinct pleasure and a privilege to be here. And I would like to do anything in my personal capacity. आप जितने अच्छे तरीके से बच्चों को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से दे आर यूथ वैसे ही एसेट होता है किसी भी मुल्क का, और आप इस मुल्क के एसेट को फर्दर रिफाइन कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग देम मार्केट रेडी टू बी एंटरप्रेन्योर्स, टू बी great workforce, and to grow further as leaders. And why not? I'm there to assist pro bono whenever you'd like me to be. Right. Umar, I'd like to take an opportunity right now and allow me to ask a few questions which help us as an institution as well as our students who are just getting prepared, well equipped with their skill inventories, with their competency mapping, and a career journey that is well crafted. Tell me, what is it that we need to do differently to lead and grow Gen Zs in our era today? Gen Z is these people are grouping themselves as Gen Z. So मैं समझता हूँ कि they are the young generation who are very smart. Right. The problem is they know it, and sometimes they become overconfident. And there's another problem. People of our age, they are unable to crack the potential of these kids. We are unable to communicate as effectively as we should have been. So the Gen X or millennials or the boomers in the past, we are sometimes very skeptical about कि Gen Z ये हैं, Gen Z वो हैं. I'm a father of 2 Gen Zs myself. And when I learned a lot from them. वो मुझे बहुत कुछ बता रहे होते हैं और मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ. The only thing which we need to do is to instill the element of wisdom in them. If the parents are able to do that, इंस्टीट्यूशन का तो काम है ही है. बस इंस्टीट्यूशन के पास बच्चा कितनी देर होता है? 6-8 घंटे. बाकी तो घर होता है, छुट्टी भी होती है. साल के अंदर 52 वीक्स हैं तो 104 दिन तो वैसे छुट्टी होगी. 3 महीने की छुट्टी है, 90 डेज, ये हो गए. कितने हो गए? 194, 194. Which is almost half a year. Which is अभी ईद की छुट्टियां रहती हैं. So how can we put so much blame on the institution कि ये लोग नहीं करें? Correct. So institution का काम है आपको दिखाना कि क्या एवेन्यूज हैं. पेरेंट्स का काम है उसको एनेबल करना. सो अगर पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेज के या कॉलेज छोड़ के या यूनिवर्सिटी भेज के आप समझते हैं कि काम हो गया. मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, मेरी बेगम अभी भी बेटे को कॉल रोज करती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे. उनको खाना तक तो खाना नहीं आता टाइम के ऊपर, सोना आता नहीं है. टाइम आ जाएगा, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल बच्चों को खुला छोड़ देना नहीं चाहिए कि अदरवाइज दे विल गेट ऑफ ट्रैक. सो यू नीड टू टेल देम अबाउट देयर पर्सनल हाइजीन, रूटीन, टाइम मैनेजमेंट, थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग. सो हमें 50-52 साल की उम्र में
मुझे अभी भी मेंटोरिंग और कोचिंग की ज़रूरत है Right. of from those people who are better than me Right. or those people who are in that skill, who have that skill set. Right. So how come we feel कि इन बच्चों को नहीं कुछ आता या इन बच्चों को कुछ नहीं आता, या हम कौन होते हैं कहने वाले, जब हमने आधी सेंचुरी गुजार के भी हमें रिक्वायरमेंट है कि हमने सीखना है कुछ. Right. तो इट इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर ऑन आवर पार्ट कि हम कहते हैं कि आजकल के जेनजी होपलेस हैं. Right. नहीं, दे आर वेरी स्मार्ट, they can articulate things very Hmm. quickly, they can learn things quickly. Probably हम उनके potential को crack नहीं कर पा रहे. Right. So when I criticize them on for not sleeping and not showing up on time sometimes, and probably the work environment is changing. It has to change. Right. हम जो काम 50 घंटों में करते थे वो हम 5 मिनट में कर सकते हैं. Correct. Can you believe this? Yes. लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं. मैं आप एक prompt डालें AI के अंदर, आप सब चीज़ें आ जाती हैं. So उसका मतलब ये है कि हमारा reference point is different. Their reference point is different. So when we start educating them और उनसे ज़्यादा लंबा बात करते हैं तो क्या होता है कि वो बोर होना शुरू हो जाते हैं. फिर हमें लगता है कि वो बोर्डम की तरफ जा रहे हैं. तो ये जो उनका जो रिएक्शनरी अप्रोच है टूवर्ड्स अस एंड टूवर्ड्स द वे वी टॉक टू देम, इसके पार्शल जिम्मेदार हम भी हैं क्योंकि हम उनको समझ नहीं पा रहे. Right. तो हमें इनको समझना पड़ेगा और उनको अपने आप को समझना पड़ेगा. उनको भी अपने आप को ऑफर करना पड़ेगा टू इम्प्रूव. एंड दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटिंग वेयर वी आर Right. डिस्कसिंग दैट Gen Zs are smart, but they need to be wiser. Right. We are wise. We need to be smarter enough to handle the smart minds. Right. Bridge the gap. Once we bridge the gap, we'll move forward and we can bring the best out of them. So which means हमें इनकी coaching भी करनी है और mentoring भी करनी है. There's a difference between coaching and mentoring. आप खुद एक NLP coach हैं. देखिए, for everyone's reference, coaching ये होती है कि हम आपसे बात कर रहे हैं. The coach asks the question and finds the hidden treasures inside the person. आपके अंदर जो स्किल सेट है, जो आपकी जो लर्निंग है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं टू गेट द मैक्स आउट ऑफ यू. मेंटोरिंग होती है वो चीज़ें जो आपको नहीं पता होती, उसके बारे में आपको लीड करते हैं कि ये कर लो, ये ना करो. सो जब जेनजी का एक्सपीरियंस ही इतना कम है, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं. अब ये बच्चे जो हैं इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है. दे आर लर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, AI सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. उसका मतलब है कि उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे हैंडल करना है. ये होगी मेंटोरिंग. कोचिंग वो है कि जो उनको ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज है, उनकी नॉलेज, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज सो वाइडली अवेलेबल, इट हैज़ बिन डेमोक्रेटाइज्ड बाय with the AI. You write one thing and you get that. The whole thesis you can find out. Means that जो उनको पता है, उनसे वो क्वेश्चन पूछना, उनको नच करना, उनसे पूछना, and hidden treasures inside they will take it out. But I think they need coaching as well as mentoring and sometimes counseling at the same time. Correct. तो तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन we need to put those hats as parents, as teachers, as institutions, and that's how we'll be able to take people out and make the most out of those hidden treasures. हम जैसे कहते थे, ऑयल को कहते थे ब्लैक गोल्ड, दूध को कहते थे वाइट गोल्ड, एंड व्हाट डू यू कॉल देम? They are atomic gold. We Correct. need to use them. They are our asset. Correct. They are going to take us places and they are our fuel to the growth of any country. Right. So we cannot let go of them by just criticizing Correct. कि ये अपना काम टाइम पे नहीं करते क्योंकि हमको समझ नहीं पा रहे. Right. Umar, you put it very diligently. They sometimes inspire you while you're talking to them, and which is 100% true that the kind of thought process they have is quite different from the ones that millennials and in fact the Gen X would have. And you'd also rightly put it that there's a quantum on which you need to have in equilibrium of wiseness versus smartness. I'd like to you to please shed a little light on what are the top 3 areas where Gen Zs could up the game around their wisdom, being more wiser, being more adaptive to the current professional environments, especially in the work setups.
देखिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं. सो आप के एक बच्चा है जिसने अपने वाले साहब का बिजनेस ज्वाइन करना है, वालदा का बिजनेस ज्वाइन करना है, दैट्स और आर गोइंग टू गो अहेड जॉइन अ स्टार्टअप. उसके डायनामिक्स और हैं. कॉर्पोरेट फॉर द लाइक ऑफ एमएनसीज हो गई, उसके डायनामिक्स और हैं. एंड कॉर्पोरेट्स फॉर द लाइक्स ऑफ ओन्ड बाय द लोकल ओनर्स, उसके डायनामिक्स टोटल और हैं. I agree 100%. Yes. उसके बाद इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके और हैं. सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेसेस. स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस और होते हैं और कॉर्पोरेट्स और होती हैं. सो इन सब के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं. और मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल. वंस यू गेट इनटू दोस, गो विद द फ्लो. बट जो पावर ऑफ साइलेंस है उसको उस स्किल सेट को हॉर्न करना बड़ा ज़रूरी है. सो विच मीन्स दैट फर्स्ट अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया. मैं जब यंग एज में था तो आई यूज टू स्पीक अ लॉट. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि स्पीकिंग लेस is even more powerful. Why I would speak more? Because maybe I wasn't trained that much. Despite of the fact a lot of people say that I used to have good communication skills. लेकिन उसके बावजूद I used to polish my communication skills by speaking more. मैं प्रेजेंटेशन ज़्यादा दिया करता था. कहीं दो लोग बैठे हैं, कोई गोरा नज़र आ गया, उसके साथ अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रही. और अपने कज़न जो अमेरिका से हैं उनके साथ अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली ताकि हमारी इंग्लिश वगैरह बेहतर हो जाए. अब इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे हो गए हुए हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्लास एनवायरनमेंट के अंदर वो तो बेहतर हो रहा है. कम्युनिकेशन स्किल्स, वन वे कम्युनिकेशन. अब एक कम्युनिकेशन स्किल्स का दूसरा हिस्सा है कि लिसनिंग, सिंथेसाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ द राइट वॉइस आंसर्स. सो ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ होगी. तो अब हमने मूविंग फॉरवर्ड अब आपको क्या क्या करना है. तो टेक्निकल स्किल्स may not be as required as now, but technical people will always be required. आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, आपको टेक्निकल कार टेक्नीशियंस भी चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिक्स, आपको इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे. कोर इंजीनियरिंग फॉर द लाइक्स ऑफ सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, दे आर गोना बी देयर फॉर श्योर. एंड कंप्यूटर साइंसेस में ये हो गया कि जो आपको क्वांटिटी चाहिए थी वो नहीं चाहिए होगी, लेकिन आपको क्वालिटी चाहिए होगी. For to develop the AI further, AI still requires human intervention to grow, and the humans are not going to be extinct in this field. जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा. We're going to be replaced by AI, but the one skill that is not going to be replaced by AI is the human empathy, emotional intelligence, communication skills, the power of silence. So what I learned very late in my career, when I joined this company 10 years back, and a lot of people said that I would not survive in this company beyond a month. Month went by, 2 months went by. I'm completing my 10th year. I'm by far the longest serving head of business in Pakistan. And we have evolved the culture of the organization. We understood. So how I did that? I started listening more. And I kept quiet 80% of times. And when I would speak, I would speak sense. This actually helped me articulate more. But मैं Robert Greene's की एक book पढ़ रहा हूँ, 48 Laws of Power. I am now discovering that unknowingly I was following his rule, which was when you are quiet in a communication, the other people, and with a poker face, the other people cannot guess, and they cannot agitate you, they cannot irritate you, and they rather feel intimidated in many ways कि यार ये सोच क्या रहा है, ये सोच क्या रही है. इसका मतलब ये है, when you do not give it away to people, they keep guessing about you. And when you speak sense because you have gathered all the information. I used to practice it a little bit differently before, but here it was my requirement to learn the business. When I was learning the business, in the hindsight, I did not realize, which I now realize, the people in my organization started thinking that I'm wiser. In fact, in hindsight, I was learning.
I was learning from them and then making sure I bring the best out of them and my team. So इसका मतलब ये है कि मैंने साइलेंस के थ्रू बड़ा कुछ सीखा, लेकिन मैं साइलेंस की पावर अब समझना शुरू हो गया हूँ. सो 8 घंटे यूनिवर्सिटी में फैमिली के साथ, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए. सेकेंडली, किताबें पढ़नी चाहिए. एक किताब में, फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग माई ओन बुक. It's called 30 Seconds Window to Success. We did not talk about it. Wow. Sorry. And I'm working on 2 more concepts. Okay. So it's a level of wisdom. There's another book I have started germinating the idea already. So I think by the time my first book comes, my 2 other books would be ready. So अब उसके अंदर हम लोग जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि you did not become successful in those 30 seconds. What are those 30 seconds? 30 seconds are, it's not a love at first sight. It is not the first impression. It is not the atomic habit. It is not grit. It is not awaken the giant within. It is a mix of all, which is actually taking you towards your destiny to find that perfect moment to communicate, which means unless you are silent and you're not absorbing, you are not able to communicate and you're not able to seize that moment. एक दिन के अंदर 3000 के करीब 30 सेकंड्स की विंडो होती है और सक्सेस की होती है. दुनिया में बहुत सारे लोग इसमें सक्सेस हो रहे हैं, बट द मोमेंट ऑफ ट्रूथ एंड मोमेंट ऑफ व्हेन यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ फ्लो कितने लोगों को मिलता है? वो जो पहले काम कर करके आ चुके होते हैं. सो अब क्या करना चाहिए? बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए. एक किताब के अंदर एक इंसान का, जैसे मैं 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ, दुनिया को सीखा, सक्सेसफुल हुए, फेलियर हुए, डिमोट हुए, जलीलो ख्वार हुए, सक्सेसफुल हुए, rated among the 100 top leaders in the self program at Samsung, got those promotions which nobody could fathom. Pakistani को मिल सकती है या पाकिस्तान मिल सकती है, but it was nothing I can attribute to my brilliance. It was more my resilience, silence, power of silence. Unknowingly, I was following the 48 laws of power, which I have just started to understand. Now, इसका मतलब है कि जो मैं अपनी किताब लिखूंगा उसमें 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस तो मेरा हो गया. उसके बाद उस किताब के अंदर मैं कम से कम 10 से 20 लोगों के बारे में बात करूंगा. 10 लोगों के बारे में बात करूंगा, उनका भी 25 साल का, 250 साल का एक्सपीरियंस हो गया. अगले 10 का करूंगा, 20 लोगों का एग्जाम्पल्स दूंगा, 500 साल का एक्सपीरियंस हो गया. 530 साल का एक्सपीरियंस तो एक किताब में जो मैं लिख रहा हूं. तो अब इसके बाद ये जो बाकी किताबें हैं, इमेजिन इफ यू हैव रेड 10 बुक्स, ओनली 10 बुक्स. मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बुक्स हैं जो कि मैंने अभी बोली हैं. 5000 साल का एक्सपीरियंस आपके पास. इमेजिन चाइना की टोटल जो आज पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, उनका जो पूरा कल्चर है ना, वो 4 से 5000 साल पुराना है. Same goes for Korea as well. These people have evolved over the period of time. एक language, एक culture, and they kept on growing over the period of time. आपकी 10 किताबें आपको 5000 साल के एक्सपीरियंस दे सकती हैं. सो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो हिडन ट्रेजर्स जो कि आपकी इसमें लाइब्रेरी में देखा था जो पढ़े हुए, यूटिलाइज इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड टीचर्स का क्या काम है, इंस्टीट्यूशंस का काम होना चाहिए, डायरेक्ट देम टुवर्ड्स दैट, हैव अ डिस्कशन अराउंड इट. आई थिंक आपका जो गेमिंग जोन है यहाँ पे, आपका जो लाइब्रेरी है, देयर शुड बी some sort of a discussion forums, which I'm sure you have, जिसमें आप बुक क्लब्स, लोग किताबें पढ़ रहे हैं और कहें आज हम 5000 साल का एक्सपीरियंस हासिल करने की तरफ जा रहे हैं और आज अगले 1 महीने के अंदर हमने 500 साल का एक्सपीरियंस. हम अंदाज़ा करेंगे 500, और वो एक्सपीरियंस भी वही है, सक्सेस बेस्ड, लर्न थ्रू द फेलियर्स. सो आई थिंक स्काई इज द लिमिट एंड द नॉलेज इज देयर, but should they waste their time on reels, or should they waste the time to learn from the reels and get inspired and then enrich their souls and mind and body at the same time? Right, excellent. At Beacon House International College, Omar, we have a clear mandate and vision of making our students resilient, making them leaders, teaching them the ethics and integrity which is required to do everyday living for them. Do always innovate
and always be available and dependable as a resource in the given forums, institutions, and corporate zones. Very nicely you've put that books become the first window of operation when it comes to wisdom. Now, wisdom alone is not going to help anyone unless and it's not translated, communicated, or spelled out in different areas. Now, going into the skin, body, and soul, as you put it, of a Gen Z, where too much of information is already available, how do you give them a code or a hack to navigate a very disrupting, very fast-paced, and a very noise-oriented environment? बड़ी ज़बरदस्त बात है. All right. जो हम सोशल मीडिया, आई सेल मोबाइल फोन्स फॉर लिविंग. अच्छा, अब इसके अंदर आप, जैसे मैंने अभी कहा, रील्स आ रही हैं. सो देयर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है. आपको डोपामिन रश आता है. आप एक देखते हैं, 10-10 सेकंड की वीडियोस देखते हैं. अच्छा, क्या हो गया कि वो उनको व्यूज मिल रहे हैं और यूजलेस ट्रैश एंड यू जस्ट हैविंग अ लाफ आपने देखते हैं, और अनयूजुअल चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, गलत बातें लोग कर रहे हैं, लोग उसको, अच्छा, कंट्रोवर्सी सेल्स. अब लोग इसको देख रहे हैं, बट यू नो द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? ग्रेटिफिकेशन और योर डोपामिन रश फॉर फ्यू सेकंड्स, राइट, एंड देन ख़त्म हो जाता है. फिर आपको और चाहिए होता है. अगर वो नहीं होता तो एंग्जाइटी होना शुरू होती है. फिर आप एक और रील देखते हैं, फिर 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10. It is just like a drug. So you keep on increasing your dopamine rush, जो कि आपको happiness दे रही है. अब इसका solution क्या है? We need to look at the delayed gratification. There is instant gratification and there is something called delayed gratification. So we need to exercise the delayed gratification. आसान बात में बताऊं. एक होती है इंसान को instant खुशी मिलती है. आप किसी चीज़ को चाहते हैं और आप इम्पल्स बाइंग करते हैं, इंस्टेंट खुशी हो जाती है. और बहुत सारी आपने देखे हैं कैंडीज़, चॉकलेट्स आपकी एग्जिट पॉइंट पे लगी होती हैं. और दैट्स हाउ द मार्केटियर्स प्ले द गेम्स इन द सुपर मॉल्स, यानी मॉल्स में, स्टोर्स में, हाइपर स्टार्स के अंदर. आप वहीं से जाते जाते कहते हैं चलो ये उठा लो, राइट. सो यू unknowingly and unnecessarily you buy something of a small value but you buy it. और आप एग्जिट करते हुए आप निकल, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. डू यू नीड इट? नो. आप च्युइंगम, टॉफ़ी, चॉकलेट के बारे मर जाएंगे? नहीं. क्या हुआ? लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए एक रश आया, आपको बड़ी बड़ी खुशी हो गई. अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आपने ये सोचा कि ये अगर 500, 1000, 2000, 5000 रुपया मैंने खर्च कर दिया यहाँ पे, और मेरा अगर कोई और टारगेट होता कि इन द लॉन्ग रन मैंने इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना है एंड आई विल मेक मनी. सो देखें, हैप्पीनेस से ज्यादा अ थॉट ऑफ हैप्पीनेस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. सो विच में आप तो एनएलपी कोच हैं, आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. जब आप किसी के, हमारे ना यहाँ पे हमने एक परसेप्शन बना लिया है. हम ले कहते हैं ड्रीम बिग, वेरी गुड. द प्रॉब्लम विद अस इज हमारी तो कॉनोटेशन ही गलत है यहाँ पे कि आप, कोई बंदा बड़ा सोच रहा है, कोई इंसान बड़ा सोच रहा है या सोच रही है, तो आप कहते हैं कि शेख चिल्ली वाली बातें, सब्ज़ बाग दिखा रहे हो अपने आप को. क्यों भाई? ये दुनिया की बड़ी कंपनियां पहले अपने दिमाग में बनती हैं. ताजमहल पहले दिमाग में बना था किसी के, फिर पेपर में बना था, फिर कई साल, 17-18 साल के बाद वो जाके बना, और निहारियां वहीं से, नहरी में भी ईजाद हुई थी. ठीक है, सुबह खाना शुरू खाते थे और फिर सारा दिन काम करते. अब ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि it was planned that way. Somebody was thinking long term. अगर आपको long term thinking और ख्वाब देखना आपको एक खुशी देता है, that is called delayed gratification. Thought of a happiness gives you more happiness. Think about that. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि 10 सेकंड के बाद उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है, वो तो खुशी है ही नहीं. लेकिन आप अपना ड्रीम सोचा है और आपने अपना दूर का हदफ रख लिया है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और हर कदम जो उसकी तरफ लेते हैं वो कदम आपको खुशी देता है, बजाय इसके कि एमलेसली मैं एक वीडियो, दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो पे जा रहा हूँ. मुझे आई एम अनएबल टू रीच अ पॉइंट ऑफ स्टाइटी. स्टाइटी का मतलब यह है कि आप सेटिस्फेक्शन के नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे, आपका दिल नहीं भर रहा, इसलिए आप आगे जा रहे हैं. लेकिन आपका जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, अगर मैंने ये किया तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसका मतलब है कि आपने एक स्टेप
दूसरा, तीसरा, we need to shift our focus from instant gratification to delayed gratification. This is the trick that the marketeers play with your mind. Right. This is the psychology of marketing. आपको इमोशनल डिसीजन मेकिंग पे ले जाते हैं और विजडम की तरफ नहीं लेके जाते हैं. तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके पास 5,000 रुपया है और आपको नज़र आ रहा है कि मैंने 5,000 रुपये के अगर ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक्स ले लिए या 10,000 रुपये के ले लिए, 20 साल के बाद ये 50,000 या 5 लाख के बन सकते हैं. तो मेरे को छोड़ो यार, किसने देखे. अच्छा, ये भी हो सकता है कि यार हो सकता है मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, किसी को फ़ायदा हो सकता है. नहीं यार, इसकी जो है ना टॉफ़ियाँ ले लेते, इसकी चॉकलेट टॉफ़ियाँ लेते, बड़ा मज़ा आएगा. एंड देन यू ईट एंड देन यू ईट एंड देन यू ईट एंड देन यू रियलाइज कि जितना मीठा मैं खाता जा रहा हूँ मुझे वो कड़वा लगना शुरू हो गया थोड़ी देर के बाद. एंड यू आर अनएबल टू अचीव द पॉइंट ऑफ स्टाइटी. आप जितना मीठा खा रहे हैं उतना कड़वा होता जा रहा है. ये वो एग्जाम्पल होगी कि जी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा जाएगा. मैं समझता हूँ ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो कड़वा भी लगना शुरू हो जाएगा. सो मीन्स कि आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाना है, उसकी थॉट के बारे में जाना है कि इसकी पॉजिटिव क्या हो सकते हैं. अब मैं सोचता हूँ, मैंने 3 साल नौकरी की, 30 साल नौकरी कर रहा हूँ. एंड यहाँ में स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि जी ये खुद नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के बारे में क्या बात कर रहे हैं. नौकरी में कोई हर्ज नहीं है, नौकरी करें. I reached one of the highest ranks and I'm okay. But at the same time, I give a big cut in my taxes. तो कहते हैं कि the 9 to 5 job is created, it is more like a slavery, right? It is created to keep you so engaged that you cannot reach your true potential. आपका असल potential इससे भी ज़्यादा है. देखें, मैं फॉर एग्जांपल 10,000 कमा रहा हूँ और एक टेक कंपनी का मालिक 10 बिलियन कमा रहा है. वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ. हाउ कम दैट पर्सन इज सो रिच? बिकॉज प्रॉब्ली दे वर नॉट डूइंग 9 to 5 जॉब. दे वर एक्चुअली नॉट डूइंग 9 to 5 जॉब. दे वर डूइंग समथिंग एल्स. बट यस, आप कहेंगे सुंदर पिचाई क्या कर रहा है? सुंदर पिचाई के पास शेयर्स हैं, ऑनर भी है वो एक कंपनी का. तो ये हो गया कि अब सिलसिला में 9 to 5 जॉब है. इट यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक. 9 to 5 जॉब में आप लोग ये कर रहे होते हैं कि यू आर एक्चुअली मैनेजिंग योर प्रॉपर्टी and the tax structure is there to destroy the life of the ones who are actually ask us, right? So करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ एक और काम करना है. आप if you cannot run a company and you can run a business but you can be a partial owner of the company. Imagine करें 30 साल पहले अगर मैंने अपनी, जब मेरी कोई 25,000, 50,000, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तनख्वाह थी, क्या मैं महीने के 20-50 हज़ार रुपये के शेयर्स नहीं ले सकता था? डिड आई बाय इट? नो. एंड आई केप्ट डिपेंडिंग ऑन माई जॉब, पे चेक टू पे चेक, प्रेशर्स. कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको रुकना पड़ रहा है ऑफिस में. अच्छा, 5 बजे छुट्टी होती है, लेकिन द बॉस इज सिटिंग टिल 7, यू आर सिटिंग एंड देयर इज नो वर्क, यू आर डूइंग इट. इमेजिन आपकी अगर पावर होती कि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती, तो आप क्या 5 बजे के बाद ब्लैकमेल होते? कि अगर आप ग्रेसफुली ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद उठ के चले जाएं एंड दिस इज योर राइट, ऐसे ओके बाय, आई एम लीविंग, डेडलाइन विल मीट. कुछ लोग ज़बरदस्ती आपको शाम को काम कराते हैं ऑफिस में, मैंने देखा बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी होता है. इफ इट इज हैपनिंग, यू कैन अवॉइड दैट. आई कुड हैव अवॉइडेड दैट इन माई लाइफ. तो क्या होता, अगर मेरे पास स्टॉक्स होते तो शायद मैं आज रिटायर हो चुका होता और मेरी वेल्थ मल्टीप्लाई हो चुकी थी. आज मैं किसी बड़ी कंपनी के पार्शियल ओनरशिप में होता. लेकिन अभी क्या है, आई एम सिटिंग, आई एम पेइंग 40% इन टैक्स एंड आई एम नाउ लुकिंग एट कि मेरे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी ने बाहर जाना है, अभी उनके पैसे इकट्ठे करने, घर का मॉर्गेज देना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, नौकरी नहीं छोड़ सकते. सो मेरे प्लान के अंदर क्या आ गया, 10 साल मुझे और नौकरी करनी है, वर्किंग एट वन ऑफ द हाइस्ट लेवल्स इन द कंट्री. I am thinking that I need to work for another. Imagine अगर मैं 30 साल से स्टॉक्स ऑप्शन अपने रख के बैठा होता, तो आज मैं कहता यार मुझे तो रिटायरमेंट फंड की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट. सो आई एम टेलिंग ऑल दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी, दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल पोर्शन स्टॉक्स, गोल्ड,
commodities, small portion. इतनी छोटी अमाउंट में डालें और इवेंचुअली इट विल मल्टीप्लाई बिकॉज द रिसोर्सेज आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जॉब करें, उससे आप सीखें, ट्रेन हो, दुनिया फिरें, सारा कुछ करें, पर एट द सेम टाइम अपने साइड पे पोर्टफोलियो डेवलप करते जाएं. एक और काम करें, जैसे कि आजकल एक बड़ी जबरदस्त लाम के नाम से एक है, ये दीज आर द अमेज़न ऑफ पाकिस्तान. दे आर डेवलपिंग बिजनेसेस. उन्होंने, मुझे पता चला अनकन्फर्म नंबर्स, ईद के दिनों में 2 दिन का मेरे ख्याल से ईद का एक मीना बाजार लगाया डिफेंस राया में. Somebody was telling me all the vendors sitting over there collectively made a sale of 1.8 billion rupees 2 दिन के अंदर. 1.8 billion rupees. And I met the co-owners. उनकी जिंदगी का ख्वाब क्या है? पाकिस्तान के हर बंदे को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को काम पे लगाना है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बाहर. They have gotten the inspiration from that organization called इसी तरह का प्लेटफॉर्म था, उसका नाम शीन के नाम से था. उन्होंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं जी, हम गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, हम मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, असेंबली करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकते, टीवी नहीं बना सकते, हम कैमराज नहीं बना सकते, हम बिल्डिंग मटेरियल नहीं बना सकते. छोड़ दें यार, हम यहाँ पॉपुलेशन तो बना सकते हैं, जो कि बना रहे हैं. यूज देम. यही जेन ज़ी हमारा असल एसेट है. Use them to export services and let them not be burden. Let these platforms be. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएं कि ई कॉमर्स जनरल नहीं, आपके जी ई कॉमर्स के अंदर एक सेक्शन होगा, हाउ डू यू कॉन्कर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर व्हाइल रनिंग योर ओन बिजनेस ऑन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म. लाम, दराज, प्राइसोए तो खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं और शॉपिफाई. लेकिन पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है. अच्छा, दे गाइड यू इन मार्केटिंग, रिटेलिंग, दे गाइड यू इन द होल सप्लाई चेन. आपको और क्या चाहिए? आपको पास अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए. लोग अपने घर से मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस रन कर रहे हैं. आई एम टोटली सरप्राइज्ड. सो दिस इज साइड बिजनेस. वंस आपने जॉब से कुछ सीख लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 9 to 5 में आप ब्लैकमेल नहीं हुए. जब आपके पास पैसा होगा तो आप 5 बजे या 6 बजे अपना ऑफिस छोड़ के आराम से जा सकेंगे. और अगले दिन आप बड़े सुकून से अपने बॉस से भी बात करेंगे और बॉस सोचेगा ये तो डर ही नहीं रहा. अगर ये डर नहीं रहा तो इसके पास सब कुछ, कोई ना कोई कार्ड है. सो इसका मतलब है कि योर लाइवलीहुड, योर कॉन्फिडेंस एंड योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल लिबर्टी, एंड दैट विल कम थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ बिलीफ. जैसे वो कहता है अवेकन द जायंट विदिन में एंथनी रॉबिन्स को, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं. पहले तो हो गया रेज योर स्टैंडर्ड्स. अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर दें, ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए. देन बिलीव, नंबर 2 है बिलीव दैट यू कैन अचीव इट. पहले अपने स्टैंडर्ड रेज किया, फिर सेकेंड टाइम आपने उसे बिलीव किया. थर्ड, स्ट्रेटेजाइज करें कि आपने इसको कैसे करना है. अब इस सब चीज़ों के लिए आपको 5 और स्टेप्स करने हैं. सबसे पहला आपका होता है इमोशनल मास्टरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें बात करता है दैट इज विजडम. डैनियल गोलमैन की किताब पढ़ लें. उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप मास्टरी. आपके रिलेशनशिप अपनी फैमिली, कोलीग, सबके साथ अच्छे होने चाहिए. आप हर वक्त लड़ रहे हैं तो आप नेगेटिविटी नहीं चाहिए. सो आपका हो गया इमोशनल मास्टरी, हो गया रिलेशनशिप मास्टरी, हो गया. उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल मास्टरी. फाइनेंशियल मास्टरी में आपको पैसे कैसे मैनेज करना है, जो कि मैंने अभी आपसे बात कर ली. तो अब ये और टाइम मैनेजमेंट आ गया. और 5वां मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा. तो ये 5 हैं. अवेकन द जायंट विदिन आप किताब पढ़िए, लेकिन आपने सबसे पहले ख्वाब देखें, शेख चिल्ली वाले ख्वाब देखें. आपका 5वां मैं सॉल्व कर देती हाँ, हूँ. बता दें. वो 5वां ये है कि यू नीड टू एसोसिएट विद द राइट पीपल अराउंड यू, बिकॉज यू आर अ सम टोटल ऑफ 5 people who you sit, talk and live with. So almost that's there. the decode. You're almost there. So I think this is the code of life. Silence is a communication. Right. Time management is a communication. Atomic Being habits is a organized, communication. बिल्कुल. You need to invest number of hours to learn a skill. Right. Learn a skill to be independent. नौकरी बिल्कुल कीजिए. मैं नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आई विश मैंने नौकरी के साथ एक काम और किया होता. Right.
which I have now started investing a It's little bit. never too late. It's never too late. Right. और ये AI की वजह से ऐसे लग रहा है कि मैं I feel like a teenager Right. now. I feel like a Gen Z myself, right? But I'm not going to be an organized one, Yeah. time management one, and the one who sleeps at night and who also looks after the health. And I think, Omar, this brings me to my very next question that I'm so proud while you were talking about all of these things. Inside my heart, I'm very proud that Beacon House International College has a mandate again, a vision that when we take students at our BTech level, H&D level, going up to bachelor's and master's, we clearly tell them that the day you are in the system at our institution, two windows of operation begin for you, which is the APCAT department, the placement, internship, coaching, counseling, and mentoring department. And the other is the foundry, which is very close to part of the management because this talks about the entrepreneurship, the skills required to operate. And so much so, it's not just an idea being born in the brain, it's actually been physically executed by involving people from the Shark Tank, people from NIC, National Incubating Center, and allowing our students to have proposals as raw as their idea being submitted. And we take a chance to evaluate them, make them grow in the right direction by involving people like yourself to mentor, coach them on leadership skills, marketing, business development, and how to do sales in real time. So my next question related to all of these things is that when you say that Gen Zs are extremely smart, driven, and have their own thought process, what is it that one thing we need to learn from them in order to sort of train our alignment to operate or coexist together in a system? हाँ, देखिए रूल अप्लाई करने हैं, लिस्निंग स्किल्स तो हमें भी अब Right. उनकी बात सुने. ठीक. वो हजरत अली का कॉल है मेरे ख्याल से कि आपको मुझे जवान का जज्बा नहीं वो बड़े बड़े वाइज Yeah. सहाबी थे. मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ. तो वो कुछ ऐसा था कि आप जो बच्चा 20 साल का हो जाए तो आप उसको अपना कोई उस्ताद बना लें, कुछ ऐसी कोई बात थी. जी. So From don't get me wrong. जी. पहले 1 आपको to 10, 10 to 14, कुछ ऐसे 14 हैं. until 20. Yeah, so I think you पहले आपको अपना गुलाम बनाना है, फिर दोस्त बनाना है और फिर अपना साथी बनाना है या अपना मेंटोर बनाना है. जी. तो आपके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो जेनजी जो हैं अब वो बच्चों को अब बच्चे आपको सिखाते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैड वन ऑफ द टेक जाइंट बिगेस्ट टेक जाइंट इन द वर्ल्ड बिजनेस इन द कंट्री. एंड जब हमने रूम के अपने टीवी के रिमोट से कुछ कर रहा था, जब इंटरनेट आगे पीछे चला जाता है तो मैं उसे कहता हूँ यार ये बेटा ये बताना कि क्या है. तो मेरे बच्चे 1 सेकंड में दूसरे राउटर पे लगा के तो कहते हैं आर यू श्योर यू आर हेडिंग सच अ बिग कंपनी. एंड आई एंजॉय इट सो मच. और अब मेरे वो ज़माना था जब बच्चे अपने माँ बाप से डरा करते थे, उनको कहते थे अब्बा जी आ गए हैं, फिर उन्होंने डैड कहना शुरू किया और उसके बाद ही इज़ माई फ्रेंड. एंड नाउ किड्स कॉल योर पेरेंट्स ब्रो. Now my daughter calls me hello bro and I am very happy. बाबा भी कहती है लेकिन मुझे bro भी कहती है. So we are very close friends. वो शायद अपनी माँ से ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादा करीब है. So Babadya, I mean Omar, I'm really what impresses me about Gen Zs is their energy, and the day they bring that energy to campus, I'm in a different aura. I'm also being an NLP coach. I'm mostly about energy and also being coached around EQ. One validation that I give to parents and students who come to me in my room in spaces where they need counseling, I mostly talk about emotional intelligence. But how is it that we can actually give them a start off point on emotional intelligence? We understand they're intelligent. We understand they have got inspiration. They have got their own mindset and thought process. हम उनको थोड़ा सा amicably अपने grounds पे कैसे negotiate करवाएं ताकि वो हमारी respect भी करें, हमसे सीखने के लिए भी राजी हों. We, like you said, they've got 30 years of experience. But the question is, are they ready to take that 30-year buy-in in 30 seconds? हमारा विजडम किधर गया 30 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ? अगर हमने कहा जी हमने नेगोशिएट करके उनको ज़बरदस्ती सिखाना है तो उसका मतलब है कि वी आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स. वी नीड टू इंस्पायर देम. हमारी देखें कोचिंग और मेंटोरिंग में जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपने उनसे यू नीड टू आस्क देम द राइट क्वेश्चन एंड स्टे क्वाइट, लेट देम स्पीक, एंगेज विद देम. आप उनसे वो बात करें जो सुनना चाहते हैं. दुनिया में कोई भी इंसान अगर आप उससे कहें कि जी आप तो बड़े नालायक हैं, आप तो बड़े बेवकूफ़ हैं, कोई टाइम पे काम नहीं करते, बिल्कुल फजूल हो, मैंने तुम्हें क्या ये कर लिया करो, कौन सुनेगा आपकी बात? ठीक है,
नेगेटिव को साइड पे रखें और पॉजिटिव से बात करें. यार, you guys are very smart. I want to learn from you. Can you teach me something new today? Right? Engage. Listen to them. In the meantime, you will start understanding their philosophy, their psychology, their exposure, because they are way ahead of you in technicalities. When they start talking to you, then in the conversation, you bring in the ideas. You cannot tell them कि ये करो और ये करो. एंड रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, करवाई नहीं जाती. अगर मैं ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट कराऊंगा तो फिर यही होगा कि वो ज़बरदस्ती अब्बा जी की करेंगे और कहेंगे यार बाप पागल है, ठीक है, और कहेंगे यार बाप बड़ा इंस्पायरिंग है, वी लव आवर डैड, ही डजंट बॉदर अस बट ही कीप्स अस ऑन ट्रैक बाय लिसनिंग टू अस. एंड रफ एजेस थोड़े बहुत साइड पे काटते रहते हैं, लेकिन दरख्त लंबा उस वक्त होता है जब दरख्त को आप ऊपर से ग्रो करने देते हैं. रफ एजेस आप काटिए, लेकिन आप ऊपर से काट देंगे तो दरख्त इधर को फैलना शुरू हो जाएगा, फिर वो इधर उधर को जाएगा. तो इसका मतलब है कि यू नीड टू डू द ट्रिमिंग इन अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर टू लेट देम ग्रो. एंड समटाइम्स आपको उनको विड्थ भी बढ़ानी है और हाइट भी बढ़ानी है. इन सब कामों के लिए आपको उनको उनकी पेस पर आना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी जो वो सुनना चाहते हैं, और फिर आप अपने विजडम के थ्रू उनके दिमाग में आइडियाज प्लांट करेंगे. और हो सकता है आपके आइडियाज गलत हों. वाइल यू आर डिलिबरेटिंग एंड वाई यू डिस्कसिंग विद यू रियलाइज कि यार ये तो दकियानूसी आइडिया है. वाई आर यू ट्राइंग टू पुट अ टाइप राइटर इन देयर हेड व्हेन दे हैव गॉन बियॉन्ड द टाइपिंग ऑन द लैपटॉप. दे हैव गॉन टू स्मार्ट होलोग्राम. हाँ, होलोग्राम्स चले गए हैं, वो ऑडियो प्रॉम्प्ट्स में चले गए हैं, और आप उनको अभी तो टाइप राइटर वाली कहानी करा रहे हैं. तो नहीं हो सकता ना. आप कह रहे पेपर कैसे लोड करते हैं, टक 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 टक. अब यू कैन नॉट चेंज. We can, we should, and we should be able to help them understand our perspective, but at the same time, we should understand them. So it is all about listening. Right. Umar, tell me, I mean, while you're talking, I'm also establishing certain notion in my head where we as an institution are very agile, open, and receptive to the needs and requirements of Gen Zs, primarily because we are educating them in a very noble business of creating future leaders. But as an institution, I can vouch, I can take a sermon today that we will keep working on these essentials required to, adapt to. What about the system in which we are operating, primarily in Pakistan? You may be aware that Beacon House International College is usually about all the international partners from the UK, जिसमें हमारे पास University of Essex, Kent, University of London, Pearson, and so on and so forth हैं. तो हमारे बच्चे तो already हमारे students एक नीश इंटरनेशनल एजुकेशन ले रहे हैं. हमारी अपनी लोकल मार्केट, हैविंग सेड, आपने बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, उनका रिसेप्टिव पावर क्या है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? अच्छा, रिसेप्टिव पावर एज इन के हमारे स्टूडेंट्स से बाहर जाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कितना कुछ समझ आ सकता है? लाइक हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ बैठ के इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, एंड बिकॉज बीकन हाउस is a very big renowned name for the past 50 years. These international partners, goes without saying, trust us with the academic legacy, educational legacy we've built around. So हम उन्हीं की education यहाँ पे local students को दे रहे हैं at a very very nominal price point. But again वो उन्हीं के student हैं जो हम लोग अपने पास grow कर रहे हैं, lead कर रहे हैं, and let them be open once they are graduated in the open market, local and global. लेकिन जब हमारा बच्चा graduate करके निकलता है, let's say University of Essex का student है, he or she may not wish to go to UK to pursue career or maybe the Gulf market, वो यहीं रहना चाहता है. So I want to know distinctively कि वो student जो कि global education लेके आ रहा है versus एक local student जो local education लेके आ रहा है, उन दोनों को एक लेवल पे खड़ा करना, इज दैट ओके फॉर द कॉर्पोरेट टू डू? अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक नीश को केटर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट. अच्छा, वी हैव गॉन पास्ट द स्टेज ऑफ only relying on the corporates for the graduating students like it's just established. और दूसरा ये कि देखिए, इंस्टीट्यूशन में आई एम प्रो एजुकेशन. मैं कभी भी नहीं, अदरवाइज मेरे बच्चे भी यूनिवर्सिटीज़ में ना पढ़े तो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में ना पढ़े तो कन्वेंशनल स्कूलिंग में ना करते. मैं आई एम इन अ फेवर ऑफ पुटिंग अ किड इनटू एन इंस्टीट्यूशन. वी शुड नॉट ब्लेम द इंस्टीट्यूशन कि जी आप हमें अच्छा नहीं सिखा रहे. बाहर के मुल्क में अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे होते तो वहाँ पे अंडर ग्रेड्स ना होता, और वहाँ पे मास्टर्स नहीं होता, और वहाँ PhDs नहीं होती.
राइट? आप क्यों अंडरग्रेड्स बिजनेस में पढ़ते हैं, फिर आप मास्टर्स भी बिजनेस में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? देयर इज़ अ नीड फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि जो आपने अंडरग्रेड्स में पढ़ा है वो शायद इनफ नहीं है, इसलिए आपको मास्टर्स करना है, आपकी तशनगी है कुछ सीखने की। अब इंस्टीट्यूशन में जब आते हैं बच्चे, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बाय द वे इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। अगर आप ये नहीं भी कर रहे होते मैं तब भी खुश होता, एटलीस्ट कि आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। देखिए, बच्चा खाली सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में सीखने के लिए नहीं आता। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, विच मीन्स हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू टॉक, हाउ टू नेविगेट इन द होल सोसाइटी। जब इतने सारे बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे तेज़ होते हैं, कुछ कम तेज़ होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, नहीं होते, कुछ लोग टर्मोइल से गुजर के आए होते हैं ज़िंदगी में, कुछ लोगों को कुछ मिला ही नहीं होता ज़िंदगी में सख्ती, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको कहते हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हो रही। ये सारा का सारा एनवायरनमेंट जब आप डालते हैं तो दिस एक्चुअली गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू सर्वाइव in a group of people who you do not know. This is what life is all about. Institution provides you an environment and teaches you the way how you should survive in an unknown situation. That is the role of the institution. The institution not necessarily teaches you कि आपने ब्रांड मैनेजर कैसे बनना है, आपने सेल्स मैनेजर कैसे बनना है, आपने लीडर कैसे बनना है। ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशन के ज़ुमरे में नहीं आती, लेकिन आप लोग ये काम करें। आई कुड सी कि आपने एक ए लेवल्स के इक्वल एक डिग्री, टेक्निकल डिग्री, वोकेशनल ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है, विच इज़ इक्वलेंट टू ए लेवल्स, राइट? जो बात, विच इज़ ग्रेट। अगर ये खाली ए लेवल भी होती मैं तब भी खुश होता। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल्स भिजवाइए, साथ में एक स्किल सेट सिखा दीजिए, और वो स्किल सेट इतना आसान हो गया आप सीखना कि मैं जैसे कह रहा था कि हमारे ज़माने में आई वुड लाइक टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू माई यंगर सेल्फ। आई कुड नॉट गो लीव द ऑफिस एंड गो टू स्टॉक एक्सचेंज एंड बाय शेयर्स बिकॉज आई हैड सो मेनी थिंग्स, बट राइट नाउ इट्स on my palm. I can open an account, I can buy and sell. Previously it was not possible. I had to be disappearing for a couple of hours to go and check a stock exchange में क्या चल रहा है। अब नहीं है, जिसका मतलब है घंटों और दिनों का सफर कन्वर्ट हो गया है इन मिनट्स। यू ओपन, यू चेक, ओके मार्केट क्लोज हो रही है, मैंने खरीदा बेचा, सारा कुछ कर लिया। मोबाइल, डिजिटल बैंकिंग, एवरीथिंग इज at the surface of your palm. इसका मतलब ये है, and at your palm top. So इसका मतलब है कि things have become much easier and much more convenient. So I do not want to put everything on the institution. I would like to value them as much as I can. बहुत सारे लोग बात करते हैं जी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे एक चीज़ बता दें कि पढ़ाई के बगैर कौन से लोग हैं? स्टीव जॉब्स, एंड स्टीव जॉब्स वो स्टैनफोर्ड आई बिलीव, वहाँ से ड्रॉप आउट है। उसके बाद ज़करबर्ग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। आई थिंक बिल गेट्स भी हार्वर्ड से, आई थिंक ये सब लोग ड्रॉप आउट हैं। लेकिन सुंदर पिचाई क्या है? उससे तो मास्टर्स किया हुआ किसी चीज़ के अंदर। हाउ कम सुंदर पिचाई इज नॉट मैट्रिक पास इंडिया से, right? and still becomes in dropouts ne they were ahead of the game. They cracked the code a little early. They were, मैं नहीं कहता कि inherently genius थे, but they stumbled on something which inspired them and they start creating something, but they started hiring those people who were coming from the institutions. Correct. Because that's your best bet. Right. हम जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं यार अंडर ग्रेड्स का 4 साल रगड़ा खाया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन से है। प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ऐसे हीरे मिलते हैं फ्रॉम, जिसको हम सेकंड और थर्ड ईयर की यूनिवर्सिटी कहते हैं, बिकॉज वो स्मार्ट होते हैं, वो शायद रेजिमेंटेड नहीं होते हैं, उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन दे आर ग्रिटी, डिटर्मिन्ड। कुछ होते हैं रुकी होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे होते हैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स, उनकी हर चीज़ और तरह की होती है, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते। स्ट्रीट स्मार्ट ये वाले होते हैं। आप इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं एंड देन यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस हैपन्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक ज़माने में
पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशन से लोग ब्रांड मैनेजमेंट में हायर करते थे और सेल्स के लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से हायर करते थे। इवेंचुअली पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्मार्ट लोग इवेंचुअली व्हेन दे गॉट इनटू ब्रांड मैनेजमेंट दे रियलाइज कि जिसके पास सेल का एक्सपीरियंस है उसको ब्रांड ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। देन दे स्टार्टेड मूविंग पीपल हियर टू देयर। दिस हैज हैपेंड इन one of the top leading Swiss multinational in Pakistan. I've seen people growing from rank to rank, ranks to ranks, by getting the well-rounded experience. Fields इतनी सारी आ चुकी हैं. So institutions को बिल्कुल blame नहीं करना चाहिए. Institutions are doing a great job. आप उनका reference point देखें. कुछ गरीब छोटे बच्चे हैं. मैं एक यहाँ पे एक स्कूल है ऑफ द स्कूल के नाम से. They are unbelievable. 100 रुपया फीस लेते हैं. ये कोई कोला नेक्स्ट वाले लोग हैं. आई वेंट टू देयर पॉडकास्ट एज अनबिलीवेबल. एक बिल्डिंग है उसमें बच्चे भरे हुए हैं और टीचर्स शाम को भी पढ़ा रहे हैं, उनको अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं. अभी मैं शहजाद रॉय कोई स्कूल रन कर रहा है जी. मैंने आई येट टू सी दैट. मैं उसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है. व्हाट ही इज डूइंग इज एज आई सी, मुझे नहीं पता वहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन ऐसी एक छोटी सी एक बच्ची कहती है मैं पंजाबी बोलने वाली हूँ, वो अंग्रेजी भी बोलती है, उर्दू भी बोलती है, जर्मन भी बोल रही है, इतना कुछ कर रही है. ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम कर सकते हैं. तो वी शुड लुक टुवर्ड्स एवरी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम देयर रेफरेंस पॉइंट एज टू हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग. नेवर डिस्करेज तरबियत के लिए जो इंस्टीट्यूट, मदरसा, स्कूल, किसी चीज़ को डिस्करेज ना करें. जो चला रहे हैं उनको चलने दें और उनके अंदर एक इंस्पायर कीजिए बाय शोइंग देम the way to add the vocational skills. That is an additional power that you can incorporate. जैसे कि आप ये अभी करें. हमारे ज़माने में एक B.Tech को आप, मेरा क्लास वाला था, वो कहता था कि मेरे अब्बू ने कहा कि मैंने 3 साल का B.Tech का डिप्लोमा करना है. हम FSC के बाद हमने कहा हमने डॉक्टर बनना है, कोई कहे इंजीनियर्स बनना है. हम बहुत सारे लोग इंजीनियर्स बन गए, बहुत सारे डॉक्टर बन गए, और हो सकता है कि मेरा वो दोस्त टेक्निकल करके अपनी फैक्ट्री चला रहा हो. राइट. हो सकता है वो बिलियनर बन चुका हो. पॉसिबल है. तो देयर इज नो हार्म इन लर्निंग दैट. लेकिन हम उसका मजाक उड़ा रहे थे. आज हो सकता है कि वो, मुझे नाम भी याद नहीं है, आई सीरियसली होप एंड प्रे कि वो इतना बड़ा आदमी बन गया हो जिससे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ कुछ और अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ. एवरीथिंग इज राइट as long as your intentions are right. Right. Umar, while you were saying, there was a question that it kept popping in my head, that there is a misnomer that has been established. I don't know by whom, I don't know when, but there is a clear misnomer that people get educated, especially at bachelor's and master's level, because they need to make better money in the future. But when I see at the reality, education cannot guarantee you higher monies, but it does guarantee you higher external orientation, more finessed skills and competencies, and an overall exposure that you can carry with yourself 24/7. Is misnomer, if you can reflect, especially considering the Gen Zs of the future. जी, जैसे आपका सवाल था उसमें आप ने पूछा कि डिग्रीज आर दे रीजन और अ गारंटी फॉर अ जॉब, और शुड वी गेट द डिग्रीज जस्ट टू लर्न समथिंग और एंड अर्न आवर लाइवलीहुड. आई थिंक इट गोज बोथ वेज. द ऑर्गेनाइजेशंस वुड नॉट हायर अ पर्सन हु इज वेल, जिसने हाई स्कूल भी कंप्लीट ना किया हो. उसके किसी स्किल सेट की बेस पे ही होगा ना. अगर वो समझते हैं कि एक सर्टन लेवल ऑफ विजडम में अचीव होता है आफ्टर अ सर्टन डिग्री, then they will hire you. देखें, probability of getting employed increases when you have a degree. Correct. It is directly proportional. And if somebody gets a job after doing masters, fine. And after doing 8th grade and does not want to, totally your call. The risk factor of not studying and getting another job and growing is too high. So do they want to go for that risk factor or not? अनलेस के बाप का बिलियंस का बिजनेस है. लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि जो बिलियनर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ाते हैं? उन्होंने तो अपने बच्चों को नौकरी नहीं देनी, उन्होंने तो अपने बच्चों को बिजनेस संभालना है. लेकिन दे स्टिल इनकरेज देयर किड्स टू लर्न, गो फॉर एजुकेशन, गो फॉर कोर्सेज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. एक बहुत बड़ी टेक कंपनी के लोग हैं, उनके जी हमारे बेटे ने A लेवल्स के बाद मैंने पढ़ना नहीं है, तो हमने कहा कि अच्छा फिर एक काम करो कि ट्रेनिंग्स ले लो
or be a director in the company. The boy is very much focused running his startups in their own fathers and chachas की company में. It's fine. It is perfectly fine for those जिनको मसला नहीं है कि मुझे कौन रखेगा अगर उन्होंने अपने बिजनेस ज्वाइन करना, लेकिन उसी बच्चे से कहना जाकर नौकरी करके दिखाओ, नौकरी करके दिखाओ, कुछ और करके दिखाओ, कोई हायर नहीं करेगा. बिजनेस बाप पैसा देगा, बिजनेस कर सकेगा, ठीक है, ये भी काम हो गया. तो मैं समझता हूँ कि if you do not have ample financial strength, then your best bet is your education. ताकि आपके chances of getting employed gets better, getting a spouse gets better. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक कॉलीग था, आजकल कनाडा में होता है, और उसकी बेगम PhD कर रही है वहाँ पे. तो उसने कहा कि उसने अंडरग्रेड MBA किया हुआ था, और उसका एक कज़न था जिसने मैट्रिक के बाद या O लेवल्स के बाद उसने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया. एंड हिज कज़न वाज अ मल्टी मिलियनेयर रनिंग हिज ओन बिजनेस, एंड दिस बॉय वाज गेटिंग 60-70, मैं 2005 या 6 की बात कर 7-8 की बात कर रहा हूँ, तो 60-70-80,000 रुपीज़ ले रहा था. उसके कज़न को कोई अपने खानदान में लड़की नहीं देता था, और उसको ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि यार नहीं, ये वाला जो है लड़का है ये बड़ा अच्छा जा रहा है. सो ये भी परसेप्शन है. Correct. If you can fight that perception that you are not well qualified and still you can be well mannered, you can be wise, and you can articulate things, and you can run a business, and you can get employed, then you will be accepted. But the chances of getting all these things with a certain level of education increases. Your education is directly proportional to your livelihood in the form of acceptance in society, in the form of acceptance in business. But if you are already sorted, coming from a very, very sorted family whose business does not require you to be educated, take your chances. But trust me, the educated people who are working in their organization, they will spin you like anything. आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ ही नहीं सकेंगे, मार्केटिंग के बंदे को पकड़ ही नहीं सकेंगे, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड. तो ये वही हो गया. यस मिनिस्टर का एक प्रोग्राम होता था ब्रिटिश, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि मिनिस्टर को ब्यूरोक्रेट्स कैसे घुमा रहे होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज दे आर सो वेल एजुकेटेड, they know the lingo, they are well articulated, they can spin things around very easily. So it teaches you wisdom in a cunning way and in a very positive way as well. Right. So I would say कि पढ़ाई भी करते रहें और अपना पैशन भी pursue करते रहें. And I think very rightly put, because the kind of influence you want to create in an environment where you are living as well as working with different sets of people, I think education would always have an edge where you have the aura, power, and influence to take your position, no matter at whatever level. Money would flow anyway as you grow further. Yeah. Thank you so much, Omar, for being on our podcast corporate series with Beacon House International College. If you can give us one message that, as an institution, a message for our students as well, so that we are navigating the route faster, better, in terms of providing resources to the corporate as well as creating better entrepreneurs for Pakistan. ये आपने बड़ी अच्छी बात की. I really liked creating the entrepreneurs for Pakistan, and obviously our great workforce who are technically solid, who are well articulated, who can think and who can reason and who can think big and we can dream big. I am truly impressed by looking at such a beautiful facility. I thought मैं इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा हूँ, पता नहीं किधर आ रहा हूँ. मेन रोड के ऊपर ज़बरदस्त impressive campus. I saw the pool, library, gaming zone. Gaming zone एक है डिजिटल और एक है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स हैं, जहाँ पे आप क्या फुटबॉल वाली गेम क्या कहते हैं उसे, वो खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं. और उसके बाद I saw those where you have the common rooms, you have the cafeteria. It's a very, very well-rounded, great facility, and you are also running an incubation center over here where the ideas come. And one thing which I would like to tell the students as well as the institution, do not send your kids as students as the salesperson कि जी ये sponsorship ले लीजिए, मेरे बच्चों को नौकरी दे दीजिए. Create pull, don't push.
Because when you create the personal brand and the institutional brand, let people come to you. मेरी जैसी organizations आपके पीछे आए कि क्या इसके लिए क्या है, which means कि personal branding का मतलब ये है कि आपने influencers create करने, tech influencers, media influencers, business influencers, marketing influencers, sales influencers, all those people who have a voice. Once these people have a voice, they will catch the attention of people one way or the other. इससे कहते हैं आजकल जो मीडिया है वो आज हम इस रूम में बैठ के बात कर रहे हैं और हज़ारों लाखों और मे बी करोड़ों लोग इसको देखें. एक ज़माने में एक एग्जाम्पल होती थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आंख ओझल पहाड़ ओझल. ये सब चीज़ें पुरानी कहावतें हैं, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तब भी ये चल रहा था. इसका मतलब ये है कि आप लोग व्हाट यू आर डूइंग यू नीड टू शो. आपने इफ़ यू डू नॉट टेल व्हाट यू आर डूइंग, then people would not even recognize your potential. So market yourself yourself well, create a consumer pool, create a pool of all those organizations and the entrepreneurs to come and invest time, money, and use your talent as a resource, and let these students use the talent of theirs for the betterment of the society and uplifting the society. और आजकल एग्रो इकोनॉमिक्स is becoming real big. It's going to be a big issue. Water management, agriculture, कम space में कैसे economies of scale achieve करने हैं. Bring all those ideas, teach them. आप अपने घर की छत पे बैठ के अपना पूरे साल का राशन बना सकते हैं. आप क्लीन एनर्जी कैसे यूज़ कर सकते हैं. और एक चीज़ चाइना के अंदर एक हो रहा है, कंस्ट्रक्शन को ज़रूर देखिएगा. कंस्ट्रक्शन में ये हो रहा है कि अब वो क्लीन एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं. हमारे बच्चों को अब हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की बजाय चाइना भी भिजवाइए. वो ऐसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि द बिल्डिंग प्रैक्टिकली डज नॉट नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी. It is going to be energy efficient. The building material is going to absorb the energy and it will light itself in the evening. Wow. It is going to be cold in summers and it is going to be warm in winters. You don't need energy, which means that your reliance on fossil fuels as well as the grid energy is going to be less. That's the future we are heading towards. Optimization of resources so that the world doesn't die and becomes more cleaner, greener. Let's think big. If they can do that, why can't we learn from them and do it over here? Use it to fuel the economy of Pakistan. I wish you all the best. I'm highly impressed and I would like to keep coming, and I would like to offer my services pro bono to coach, mentor the kids and the teachers. At the same time, I'm a senior certified professional coach, and what better way to contribute by giving back to society and those who are hungry to be recognized, not hungry for validation, to be recognized as the right persons to be depended on to grow the economy and grow the nation. Thank you very much. Thank you, Umar, for being on our show. It was so delightful to have a conversation with you. And I'm super excited and also super thrilled that there's so much to learn from the corporation, especially learned, educated, and inspiring people like yourself with such length of experience in the corporate. I'm sure there's more to it. And once again, thank you so much. And we'll be taking the advices to the level where you'll be proud to see how we have educated it. Thank you so much.